participate in that also? In the field in agriculture, to minimize the labor cost, to increase the efficiency and profitability in agriculture. Nearly for 30 years, but many machines, I don't know. But if you are exposed to even to the name and photographs of those machines, that will definitely give an impression has in revolutionary. Thank all the spreading in this session and Just holding a piece of paper in the form of certificate is not going to benefit you, especially in today's world. So, your dedication and sincerity to this training program will determine the outcome of it. If you are sincere, if you are more dedicated, the outcome, the expected outcome, the desired outcome will be achieved. And if you are wholeheartedly welcome you all to visit in this novelly entitled program tackling students. I think it is first of its kind where students are to be tackled in different ways. That keeping the diversity of this whole group, because there are students from different disciplines. The topic, it is too big. It should have been bifurcated in many parts. Pests of field crops is separate, pests of one-seed crops it is separate, and pests of storage pests it is separate. So I think I cannot have justice with this, but to some extent we will elaborate it to some extent. Just conjure it in your mind कि ऐसा होता होगा, but that वो वैसा नहीं होता है practically. Practically, you learn the way it is done. If we are going to have a rice plant, how it is, इसका कहाँ से grain, मतलब इसका seed कैसे choice होती है, selection of seed कैसे होता है, उसके बाद उसका पहले seed treatment कैसे होता है, उसके बाद उसकी soaking कैसे होती है, उसके बाद sprouting कैसे होती है, and how you recognize them, है ना? अब ये हमारे students ज़्यादा देखते हैं when they do the PG, और जो उसमें जो फंस जाएगा rice crop में. मोस्टली यहाँ पे वाटर में राइस क्रॉप भी बहुत कम लोग लेते हैं, तो उसमें भी क्या वो करते हैं, उनको एक रेडीमेड नर्सरी मिलती है. सो दैट वाज व्हाई वी सेंट ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड दे एंजॉयड देम ओवर हियर. एंड मोर एवर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में. रेजिडेंशियल कैंपस है, सो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग्स एंड डू इट प्रैक्टिकली, बिकॉज otherwise you will not get the certificate if you have not acquired the skill. It's not a theoretical training program. So unless and until you have the skill of how to transplant, how to take out a plant, how to take care of the nursery, and we'll be having a mechanized rice transplant. Because अगर field crops का ये एक बहाना है कि इसका benefit cost ratio कम है और horticulture में ज़्यादा है, but we have to see how we are reducing, how we can reduce the benefit cost ratio, how we can increase the benefit and reduce the input cost. Transplanting is one of the most important step that has to be taken by the agriculture department. HOD statistics and HOD agronomy, I welcome you all. You have spared your time for participating in this inaugural session and you have come over here. I especially thank all those students who have registered today and who have registered yesterday. 13 students registered at Khudwani Center and they will be continuing with us for the next 7 days. It would have been a failure probably if I would have continued at Khudwani because the turnout was very, very less. Now you have come, there is a huge demand. I think some more students may be joining us after this session, and with the permission of Dean Faculty of Agriculture, maybe I may go up to 60 if more students come. Training, and particularly to the madam who has accepted our request at the last moment and provided the necessary facilities for the conduct of this training. ये जो ट्रेनिंग के बारे में हमने बात की, ये ट्रेनिंग नहेब के अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, उसके तहत शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंसेज भी यहाँ इन्होंने चलाया है पिछले 3 साल से. उसके तहत ये उन्होंने पैसा जो है इसके लिए वहीं से आया है. इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नहेब अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट एंड आई एम हाईली थैंकफुल. बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम PI नहेब प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर भी है,
और यहाँ के भी शुक्रगुजार हैं हम वाडूरा में जो डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर रेहान हबीब कैंट है, उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें फैसिलिटी हॉल प्रोवाइड कराया और हमें सारी फैसिलिटीज़ दी। अदरवाइज़ जो ये ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, ये माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स खुडवनी, क्योंकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए और स्टूडेंट्स का टाइम मद्देनज़र रखते हुए मौसमी हालात की वजह से भी हमने उसका वेन्यू जो है वो खुडवनी से चेंज करके हमने वाडूरा में ये ऑर्गेनाइज़ किया है। वो है स्किलिंग स्टूडेंट्स इन प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फील्ड क्रॉप्स। मतलब ये है कि जो भी हमारे फील्ड क्रॉप्स है उसमें फूड क्रॉप्स पहले आते हैं, जैसे धान है या गेहूं है या हमारी मक्की है। उसके अलावा रैपसीड आता है या बरसीम या ओट्स, पाउडर ओट्स। ये सारे क्रॉप्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुल्क की और हमारी यूनिटी की तरक्की के लिए, और जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है। इनके बारे में सोचना, इनकी नई किस्में ईजाद करना, उनका मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में आता है कब बुआई करनी है, इसकी कितनी सीड रेट होनी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर होना चाहिए, कितनी इरिगेशन होनी चाहिए, कब इसकी बुआई होनी चाहिए, टाइम ऑफ प्लांटिंग, ये सारा कुछ लेके जब हम पहुंच जाते हैं, फसल जब तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी सेफ स्टोरेज, वहां तक ये सारे एस्पेक्ट्स इस ट्रेनिंग में हम कवर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हमारी धान की फसल है, राइस है, व्हीट है, मेज है, रैपसीड है, और इसके अलावा दालें जो हमारे कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें खासकर जो है बीन्स आता है। ये सारे टॉपिक्स हमने 24 लेक्चर में कवर किए हैं। इसमें 6 स्पीकर नेशनल स्पीकर हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे इसके माने जाने साइंसदान हैं, उनको हमने बुलाया है इस ट्रेनिंग में। और उसके अलावा जो हमारे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी के अपने साइंटिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ प्लांट ब्रीडिंग के, एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, यानी कि कुल मिला के इन फसलात के हवाले से जो भी टेक्नोलॉजी है, इनको कीड़े जो इनको नुकसान पहुंचाती हैं या कुछ बीमारियां इनमें लाक होती हैं, या इस तरह से इनमें कैसे हम प्रोडक्टिविटी इनकी जो इनसे आमदनी हासिल होती है वो कैसे बढ़ाई जाए, उन सब टॉपिक्स, उन सब मौज़ूआत के साथ हमने इसमें रखा है प्रोग्राम इन स्टूडेंट्स को बताने का। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ब्रीडिंग के हवाले से या एग्रोनॉमी के हवाले से या प्लांट पैथोलॉजी के हवाले से, इनको आगाह किया जाएगा। इनकी जो नॉलेज है अभी तक जो इन्होंने पढ़ाई के दौरान हासिल किया है, इसमें उस नॉलेज को हमने अपडेट करने की कोशिश की है। और दूसरा, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स के बारे में इनको बताने जा रहे हैं। अगले 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। देखिए, एक तो रिवायती तौर पर जो क्लासरूम में बच्चे जाते हैं तो उनको टीचर हजरात पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं या आजकल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आए हुए हैं, तो एक सिस्टम रहता है क्लास करने का, वो एक रिवायती तरीका है। दूसरा है कि अगर हम हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल जो कंट्री लेवल पे हैं या क्लास लेवल पे हैं, उनको जो लेटेस्ट टॉपिक्स है उनके बारे में बताना, ये एक अलग टाइप का इनका रिफ्रेशमेंट कोर्स टाइप रहता है, जिसमें इनकी नॉलेज हम अपडेट करते हैं। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यहाँ के डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर रेहान हबीब कि जिन्होंने हमें फैसिलिटी यहाँ पे दी, मुयस्सर रखी। और दूसरा, हम स्टूडेंट्स के भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। यानी कि अगर 50 सीटें हमारे पास थी, मुझे लगता है कि 60-70 स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे। आज पूरा दिन रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में खुश है, ताकि इनको जो इनके स्किल्स जो है, इनके हुनर जो है वो हम अपडेट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेजेबल बनाएं, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल।